Hi everyone, welcome back to another exciting video और आज का वीडियो हम रखेंगे short and crisp and in today's video we'll understand just two concepts. The first one will be what are the regulatory bodies that we have because बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स को ये डर लगा रहेगा कि क्या मेरे पैसे सेफ हैं. Is there something जो इन सब एक्टिविटीज पे चेक रख रही है so that my money is safe. Second thing, who are the market participants? ठीक है, रिटेलर्स तो हैं ही मार्केट के अंदर, मैं पैसे लगा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट बिग प्लेयर्स? तो वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं मार्केट में, वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इट. So let's start off with the regulatory bodies first. So in India, we have two major regulatory bodies. The first one is RBI and the second one is SEBI. So if we talk about RBI, RBI stands for Reserve Bank of India. And as it's very intuitive from the name, it has to do something with the money. And yes, that's correct. So जितने भी monetary decisions है, जितने भी financial decision है इंडिया में, that is taken care of by RBI. RBI has the power to control the supply of INR, which is the Indian rupee, and at the same time, they make all the regulations that are required in the Indian banking system. And yes, they can print more and more notes if they want, so they can control the supply of money, and at the same time, they control the major key rates in the financial system, such as the repo rate or the banking rates. So everything is taken care of by RBI, and RBI also keeps a check on inflation and GDP in a country. So the country in this case, India. So that is the thing. RBI has the major power to look from the top on a higher level what's happening within the country and how is the money circulating and how is GDP and inflation in the country doing. So that's the first one. Now comes the second one, which is SEBI, Security Exchange Board of India. And its major role is to prepare the guidelines and provide education so that we do not have any frauds when it comes to the stock exchanges. Such as when you people trade on NSE and BSE, तो उस पे सब कुछ guidelines के मुताबिक हो रहा है या नहीं. That is taken care of by SEBI. So when it comes to stock market और उसके regulations, इस पे सबसे बड़ा चेक रखता है SEBI. तो कोई भी IPO आ रहा है, कोई भी shares transfer हो रहे हैं और जो भी चीज़ें हो रही हैं, every single guideline is given or taken care of by SEBI. So far, so good. Now let's talk about the market participants, and I'll just bifurcate it into two categories. The first one are retail investors, जो मार्केट में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 70 लाख रुपए लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं in a hope that they will make good returns out of it. तो ये हो गए retail investors. But then comes the second category, the big whales, big boys, the market movers, the financial institutes. ये वो लोग हैं जो मार्केट को मूव करते हैं. तो जो आप सोच रहे हो कि आज शेयर यहाँ पे है और कुछ दिनों के बाद वो यहाँ होगा एंड वी विल कैच दिस मूव एंड मेक गुड प्रॉफिट, सो यू आर नथिंग बट अ स्पेक्यूलेटर. तुम्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जा सकती है एंड यू विल मेक मनी. बट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, दे आर द वंस जो मार्केट को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं एक्चुअली. सो उनसे ही तुम्हारी डायरेक्ट टक्कर है. अगर तुम उनके अगेंस्ट जाओगे, यू आर गोइंग टू लूज मनी इन द मार्केट. अगर तुम सीख गए कि कहाँ पे उनकी एंट्रीज हैं और उसी टाइम तुमने एंटर किया या उसके आसपास तुमने एंटर किया, यू विल मेक शिट टर्म्स ऑफ मनी इन द मार्केट एंड दैट इज अ स्किल. वही तो हमें सीखना है एंड दैट विल लर्न इन द कमिंग वीडियोज. बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ही हैं. अगर इनके साथ खेलना सीख गए, यू आर मेकिंग मनी. इफ यू गो अगेंस्ट देम, यू आर लूजिंग मनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं. सो द फर्स्ट वन ऑन द लिस्ट आर कमर्शियल बैंक्स. तो इसमें कौन कौन आते हैं? यू हैव HDFC, ICICI, यू हैव PNB, यू हैव SBI. ये सभी कमर्शियल बैंक्स हैं. बट एट द सेम टाइम they also invest their money into the stock markets, but this is not their mainstream business model. तो हमें पता है कि कमर्शियल बैंक्स कैसे काम करते हैं. हम अपने FDs उनके बैंक में खुलवाएंगे, हमारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट उन बैंक्स के अंदर होगा एंड दे विल गिव अस सम परसेंटेज रिटर्न. फॉर एग्जांपल ऑन एन FD दे कैन गिव अस 6% रिटर्न. बट एट द सेम टाइम उसी पैसे को वो आगे दे देंगे एज अ लोन, और जब वो लोन पे जाएगा दे विल आस्क 10% और 11% फॉर इट एंड सीधा सीधा 4% बना लेंगे बिकॉज 10 - 6 = 4. एंड दिस इज हाउ दे वर्क एंड दिस इज हाउ दे फंक्शन. बट दे आर ऑल्सो अ मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट. देन कम्स द इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जिनका एक मेजर पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टेड रहता है. दे हैव अ लॉट ऑफ मनी इनटू द स्टॉक मार्केट्स एंड व्हाट दे जनरली डू इज दे प्रोवाइड देयर फैसिलिटीज, दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशंस. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंसिंग, और इफ यू टॉक अबाउट कि किसी कंपनी का IPO निकालना हो या फिर
ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करने हो किसी इन्वेस्टर को. सो दिस इज समथिंग विच इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू. देयर इज अ लॉट ऑफ अदर ऑपरेशंस, बट सम एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर से मॉर्गन स्टैनली, वी हैव JP Morgan, वी हैव गोल्डमैन सैक्स. तो ये सारे ही इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं. देन कम्स द थर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच इज द इंश्योरेंस कंपनीज सच एज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, और इनका भी एक मेजर पोर्टफोलियो मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है. देन कम्स द फोर्थ कैटेगरी विच इज DIIs, विच इज अ मेजर वन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. और ये वो लोग हैं जो अपनी कंट्री की कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाते हैं, एंड दिस इज द मेजर बिजनेस मॉडल. तो इफ यू टॉक अबाउट एनी इक्विटी म्यूचुअल फंड, इफ यू टॉक अबाउट से एक्सिस ब्लू चिप या फिर कोटक का कोई भी पकड़ लो आप, तो ये सारे जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, और उसको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमसे एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, बिकॉज दे आर टेकिंग केयर ऑफ अ मनी एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस सम गुड रिटर्न्स. तो जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं, दीज आर DIIs. Right. Then comes the next category. The last one on my list, which is a major one, FIIs, the foreign institutional investors. और ये वो लोग हैं जो अपनी कंट्री में नहीं, किसी और कंट्री में, किसी और कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं विद अ विजन कि ये कंपनीज उनको बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकती हैं. एंड आई टेल यू अ फन फैक्ट कि इंडिया इज वन ऑफ दोज डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें सबसे ज़्यादा FIIs इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इंडिया हैज़ गिवन सच अ ग्रेट रिटर्न इन द पास्ट फ्यू ईयर्स कि ये एक ऐसी कंट्री बन रही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखती है सभी FIIs को. सो फ्यू एग्जांपल्स फॉर FIIs. वन इज Vanguard, then if you can also take an example of ADIA, which is Abu Dhabi Investment Authority. So all these people, they invest their money in India, and yes, these are major investment. And when I talk about the financial institute, तो यहाँ पे 70 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे we talk in crores. So 500 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे वैल्यूज में ये इन्वेस्ट करते हैं, एंड दीज आर द पीपल हु मूव द मार्केट. सो फार आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द रेगुलेटरी बॉडीज दैट वी हैव एंड हु आर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज ये अब तुम्हारा बेस सेट हो गया, एंड नाउ यू नो कि मार्केट में होने क्या वाला है और कौन लोग हैं जो मार्केट की मूवमेंट को डिसाइड करेंगे. एंड विद कमिंग टाइम हमें बस यही ट्रैक करना सीखना है कि कब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट में एंट्री ले रहे हैं और कब वो मार्केट से एग्जिट करने वाले हैं. अगर ये चीज़ हमने सीख ली, यू आर थ्रू, यू कैन सेल थ्रू, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो जस्ट स्टिक टू इट. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, बिकॉज आगे आने वाले दिनों में वी आर ब्रिंगिंग अ लॉट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जहाँ पे तुम हर एक चीज़ स्क्रैच से सीख पाओगे. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू गिव अस अ थम्स अप ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जस्ट टेक केयर, बाय बाय.